you. Dear student, I would like to explain conditions of aromaticity, that is Huckel's rule. A compound is aromatic only if all four conditions are satisfied. Number 1, the compound must be cyclic. Number 2, the compound must be planar. Number 3, compound must be fully conjugated. And last, compound must obey Huckel's rule. You are well aware of the benzene. Benzene is the most representative compound of aromatic category C6H6. This benzene is cyclic as well as it is planar. Why it is planar and how one can say that particular compound is planar? If all the hybridization of the element is sp2. Here benzene has 6 carbon and all of these carbons are sp2 hybridized, and you are very aware of the fact that sp2 hybridization bond angle is 120 degree. For example, if you wish to draw this is the sp2 hybridization and bond angle is of 120. The entire molecule would be the planar. In the benzene, all the 6 carbon atoms are planar. That's why this total molecule is planar. The first cyclic, no open change, cyclic. Second is the planar, and third is fully conjugated, means alternate double bond. This is the double bond, here is the single bond, and here is the double bond. This is the alternate double bond. This is called fully conjugated and must obey the Huckel's rule. What is this rule? Compound possesses 4n plus 2 pi electrons. The value of n may be any integer, that is 0, 1, 2 and 3. If the value of n is 0, then the total number of pi electron will be 2 pi. If value of n is equal to 1, and if we put the value 1 here, then 4 multiplied by 1 plus 2 equals to 6 pi. 2 pi and 6 pi. Thereafter, if you put the value here 2, 4 multiplied by 2 is 8 and plus 2 10. The first member is 2 pi, second member is 6 pi and third member is 10 pi. Besides the aromatic, there are two other categories. What are these? Anti-aromatic, ऐसे कंपाउंड जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पहले में 4n प्लस 2 था, यहाँ पर 4n, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है, तो 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई एक्सेट्रा. These compounds are anti-aromatic, means molecules are highly unstable. Here molecule is stable. If you calculate the bond energy of benzene by taking into consideration the presence of
3 double bond, the energy would be equal to 79.8 kilojoule, but actual energy of benzene is 49. Approximately there is a loss of 25 kilojoule. The lower the energy, higher is the stability. So the first benefit of the aromaticity, compounds become more stable. Here, although aromatic, anti-aromatic, but most unstable. And third category is non-aromatic, fails one or more. These are the four conditions. Fails one or more condition of aromaticity, that is चाहे नॉन प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा, या फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, या जो है पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इन चार में से जो चार इसेंशियल कंडीशंस है, उस कंडीशन में से कोई ना कोई आपको कंडीशंस फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो इस तब हम इसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई। अब यहाँ पर पहला कैटेगरी दिया गया है, इसको आपको हटा देना है क्योंकि ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था। ये आपका सिस्टम है। अब इसमें देखिए बेंजीन है, दूसरा आपको साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, 5 कार्बन डाइइनाइल, 2 डबल बॉन्ड है, और C5H5 माइनस, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन नेगेटिव चार्ज। उसके बाद साइक्लोप्रोपिनाइल केटायंस, 3 जो है कार्बन और इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर ये आपको है ट्रोपोलियम आयन, इसे कहते हैं C7H17 या साइक्लोहेप्टाट्राइन आयन केटायन, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और प्लस चार्ज है, तो साइक्लोहेप्टाट्राइन 7 कार्बन, हेप्टा साइक्लोसाइक्लिक है, साइक्लोहेप्टाट्राइन 3 डबल बॉन्ड है, केटायन पॉजिटिव चार्ज। इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, then you will find that this has the 2 pi, this has the 6 pi, here is the 2 pi, and here is the 6 pi. What are the rules to calculate the number of pi electrons? You can find out this rule counting the electrons. Each double bonds equals to 2 pi electrons. Each double bond, suppose if a molecule has 3 double bonds, then there will be 6 pi electrons, as in the case of benzene. Here is 6 3 double bonds and 6 double bonds means each contributing 2 pi electron. Total number of pi electron will be 6, 3 multiplied by 2. बेंजीन के ऊपर न कोई नेगेटिव चार्ज है, न कोई पॉजिटिव चार्ज है, न लोन पेयर है, तो इसीलिए टोटल आपको 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, ईच नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ईच नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्ड टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है, यहाँ पर आपको 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 multiplied by 2, each double bond is contributing 2 pi electrons. There are 2 double bonds means 4 electron pi electrons, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा गया है। 6 क्यों लिखा गया है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, and because of this negative charge there is a extra 2 pi electron. Each negative charge contributes 2
pi electrons if the lone pair occupies the p orbitals। यहाँ पर लोन पेयर p ऑर्बिटल्स में है, इसलिए यहाँ कंट्रीब्यूट होगा, तो 4 और प्लस 2 6 हो गया। पॉजिटिव चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ जैसे पॉजिटिव चार्ज है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यानी टुवर्ड द पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स बट प्रोवाइड्स एन इम्पटी p ऑर्बिटल फॉर कॉन्जुगेशन। तो अब यहाँ पर क्या इसका जो है महत्व है, महत्व यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, लेकिन जो है कॉन्जुगेशन में ये इम्पटी p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी। लोन पेयर हमने बता दिया, जैसे आपको नेगेटिव चार्ज उसी तरह लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन करेगा। अब आपको जज करना है कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी प्लेनर और नॉन एरोमेटिक, देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू शुड वेयर द टोटल कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट, यानी रिंग बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद। अब यहाँ सारे में देखिए रिंग आपको क्लोज्ड है, तो साइक्लिक। फिर उसके बाद प्लेनर, ईच कार्बन एटम मस्ट बी sp2 hybridized if any of carbon atom is not sp2 hybridized, the molecule would not be aromatic। नेक्स्ट फुल्ली कॉन्जुगेटेड ऑर्डर डबल नॉट। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद फिर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हैं, जो कि हमने गिनने का रूल बताया। अब ये चारों अगर सेटिस्फाइड हो गए तो हम इस कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहेंगे। अब उसके बाद अगर जो है 4n के बराबर, इतना तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन 4n+2 रूल नहीं लागू हो रहा है, 4n लागू हो रहा है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n के इक्विवेलेंट है, तो इसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी होगी लेकिन बहुत ही अनस्टेबिलिटी के साथ होगी, और अदरवाइज अब न 4 ये तीनों कंडीशंस पूरा है, न ये पूरा है, न ये पूरा है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। लेट अस सी, यहाँ पर आपको क्या है, साइक्लिक भी है, उसके बाद ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट्स मीन्स प्लेनर भी है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड भी है, और 4n+2, n की वैल्यू अगर आप 1 रख दीजिए तो 4 × 1 4 and +2 6, all the 4 conditions are satisfied, that's why this is the aromatic, and this is the cyclopentadienyl। 5 साइक्लिक है, सबसे पहला क्या है, साइक्लिक है। दूसरा आपके कंडीशंस क्या हमने बताया कि प्लेनर, ईच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। थर्ड alternate डबल बॉन्ड, एंड फोर्थ 4n+2 रूल। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 है तो आप देखिए यहाँ 6 पाई के करस्पॉन्ड 6 पाई हो जा रहा है, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। उसके बाद साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, 3 कार्बन और उसके बाद 1 डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ईच डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए, और फिर उसके बाद क्या मिल गया आपको, तो इसलिए देखिए, और ना इसके पास नेगेटिव चार्ज है नहीं, इसलिए कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ें, पॉजिटिव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ कॉन्जुगेशन में इम्पटी p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, इसलिए ये भी फुल्ली आपको जो है एरोमेटिक है। यहाँ पर ये है ट्रोपाइलियम आयन या साइक्लोहेप्टाट्राइइन, आप यहाँ पर देखिए, इसका भी जोड़िए तो आपको 6, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए अतिरिक्त कोई 2 पाई नहीं मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज है 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर टोटल 6 होगा, तो ऑल ऑफ दीज आर फुल्ली एरोमेटिक। द सेकंड कैटेगरी क्या है, एंटी एरोमेटिक। 3 कंडीशंस आर फुल्ली
नंबर 1 साइक्लिक, नंबर 2 प्लेनर, नंबर 3 फुल्ली कॉन्जुगेटेड। यहाँ तक ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन 4n+2 रूल नहीं सेटिस्फाई है, बल्कि 4n का रूल सेटिस्फाई है। यहाँ देखिए साइक्लो ब्यूटाडाइन, 2 आपको डबल बॉन्ड, तो आपको 4 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 है तो यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉजिटिव चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो दीज 2 कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक, दे हैव द सब डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी बट हाईली अनस्टेबल। थर्ड कैटेगरी इज नॉन एरोमेटिक। अब इसमें क्या है, यहाँ 1 डबल बॉन्ड 2 पाई, यहाँ 2 डबल बॉन्ड 4 पाई, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड 6 पाई, यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड 8 पाई। लेकिन क्या है, ये नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो sp2 है और ये कार्बन क्या होगा, sp3 कार्बन होगा। और sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल होता है आपको, इसलिए इसको प्लेन में ये पूरे नहीं होंगे। उसी तरह यहाँ आप कार्बन देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ का ये कार्बन देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जो है आप वक्त दे दीजिए मुझे, ये जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ये आपका कार्बन क्या है, ये आपका कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये आपका कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज होगा आपका ये कार्बन। उसी तरीके से ये कार्बन भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये कार्बन भी जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, और उसी तरीके से इसमें भी आपको एक डबल बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन प्लेनर होगा। इस तरीके से आप एरोमेटिसिटी तय कर सकते हैं कि वेयर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। Let us summarize once again. There are 4 conditions. Number 1 cyclic, compound must be cyclic, compound must be planar and fully conjugated system. Here is one mistake, let me correct it. This is the word planar, this is the word planar. Thanks for having the patience. There are 4 conditions. Number 1, compound must be cyclic. Number 2, compound must be planar. The meaning of planar I have already explained, that each carbon atom must be sp2 hybridized. If any one of carbon atom is sp3 hybridized, then the molecule would no longer be cyclic. And number 3, fully conjugated. Fully conjugated means alternate double bond. If there is not alternate double bond, there must be empty p orbitals. For in the case of positively charged cation, the positive charge do not contribute toward the pi electron but have the vacant p orbitals, and these vacant p orbitals provides means for conjugation. And third, fourth and last is always Huckel's law. अब उसके बाद जब ये 3 आपको, नंबर 1 साइक्लिक, प्लेनर, फुल्ली कॉन्जुगेटेड, ये